Okay, well, very good afternoon to all of you. So we are going to have a hands-on on testing of hypothesis, both parametric and non-parametric, right? As much as Sir has explained you, he has given you a one case study that he explained pre-high tea session, right? So I have a different data set, and I hope that has all been circulated to you already, right? So it is easier, very small data set, and we will try all the parametric and non-parametric tests on that. And then later on, you can try your all these tests on the particular case studies that Dr. Siddiqui has given you. Okay. So first of all, you have understood all the important basic points that is required for testing of hypothesis, right? So can anyone tell me what is the first basic assumption that has to be followed under parametric testing of hypothesis? We are going to start with parametric testing. Yes? Testing of normality, right? And what test are you using for testing the normality? Kolmogorov-Smirnov test, right? So, okay, so let's start with the data. As you can see, we have three variables, right? So the variables show that one of the variable is group. Okay, we'll try. Can you help me out, please? I am okay, ma'am. Yeah, right. Okay, so here it is. Is that good enough right now? Okay, great. So जो पहला variable है हमारे पास में, the first variable is group, as you can see. Second variable is anxiety, and third variable is anxiety 2. Okay, and it has been defined कि पहला जो आपका variable है, that is nominal, not ordinal, but nominal. Okay, and the other two variables are scale variables. So this data has been taken on 24 individuals, and as you can see, जो आपका group है, that group has two values. Okay, so the label says spider or picture, and the values are one is picture and another one is real spider. We have already coded it 0 and 1, because 0 and 1 करेंगे तो it will be easier for analysis, right? String variable में analysis नहीं हो पाती है. So इससे क्या समझ आ रहा है कि you have two groups. One of the groups has been shown the picture of a spider. Okay, and their anxiety level is measured, right? And another group has been shown actual spider and the anxiety levels are being measured, right? Uske baad mein we have anxiety 2. So if you want to test some kind of impact of any kind of anxiety medicine, so what will you do is कि आप एंटी एंजाइटी उनको देंगे and then you will check कि उनका एंजाइटी लेवल जो है वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है in a particular given time, right? So in that what we have done is कि दो ग्रुप दिए जिनको स्पाइडर एक्चुअल स्पाइडर दिखाने के बाद में और पिक्चर दिखाने के बाद में उनका एंजाइटी लेवल में कुछ इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, and after that they have been given medicine, and post that उनका एंजाइटी लेवल में कोई रिडक्शन या नहीं, right? So you can see both the things. We have independent groups and paired groups both, right? Independent groups कौन से हो जाएंगे इसमें? Can anyone tell? Anxiety 1 and anxiety 2 will be independent groups. Is that so? Then how will that be independent?
नहीं नहीं, अब वो डेटा अलग है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इंडिपेंडेंट है। मैंने बोला ही उनको एंजाइटी मेडिसिन दी है, सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को एंजाइटी मेडिसिन दे रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली प्री के बाद में पोस्ट देख रहे हैं ना इफेक्ट। ओके, सो एनीवन एल्स? हाँ जी, yes, definitely. So since those who were shown the picture of spider were not being shown the actual spider, right? So those two groups will be independent. समझ गए? एक ग्रुप को स्पाइडर दिखाया है, दूसरे को पिक्चर दिखाया है स्पाइडर का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना? तो उनका एंजाइटी लेवल अलग अलग हो सकता है कायदे से। ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि इंडिविजुअल मतलब इंडिपेंडेंट ग्रुप्स कौन सा है हमारा, और पेयर्ड ग्रुप कैसा है, राइट? सो पहला जो टेस्ट हमें देखना है दैट इज सिंगल सैंपल टी टेस्ट। हाँ, तो सिंगल सैंपल टी टेस्ट का एप्लीकेशन होता है, द टी टेस्ट शोज दैट वेदर योर मीन हैज सम पर्टिकुलर वैल्यू और नॉट, है ना? तो उसमें नल हाइपोथेसिस बताइए कोई, आपने ये सब अभी प्री वो थ्योरी सेशन में पढ़ा था। सिंगल सैंपल टी टेस्ट के लिए नल हाइपोथेसिस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द नल हाइपोथेसिस हैज टू बी अ हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, राइट? ओके, so in single sample t test what we do is that our mean, it is for testing of means only. So for mean, let's say that हमारे जो anxiety level है वो किसी एक particular value के बराबर है, whether you are showing the picture or you are not showing the picture, मतलब actual दिखाओ या नहीं दिखाओ कोई मतलब नहीं है कि आपका एक anxiety का particular level हो रहा है या नहीं हो रहा है। So you can see क्या आपकी जो एंजाइटी है वो 30, 35 मतलब 25 से लेके शुरू हो रही है एंड वी हैव 55, यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है। मान लिया मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि हमारा जो एवरेज एंजाइटी है, वेदर यू शो द पिक्चर और यू शो द एक्चुअल स्पाइडर, इट इज इक्वल्स टू 35। तो हमारा टेस्ट वैल्यू हो गया कि हमारा मीन जो है वो 35 होना चाहिए। सो द नल हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू दैट विल बी, what will be the null hypothesis in that particular case? मार्कर दो, मार्कर दो मुझे, मार्कर रखा तुम्हारे वर्किंग नो। कोई बताएगा? फॉर सिंगल सैंपल टी टेस्ट द नल हाइपोथेसिस विल बी म्यू बराबर, हाँ या राइट, एंड द ऑल्टरनेट विल बी म्यू। अब ये देखिए आपका जो SPSS है वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, सर ने आपको बताया था 2T, so it should be not equals to 35, right? सब everyone is getting that, right? तो आपका जो डिसीजन रूल होगा इसमें क्या होगा, you have to remember the decision rule. What will be the decision rule? If, बताइए, if the p value comes out to be, कुछ भी बोलो, लेस देन बोलो, मोर देन बोलो, मान लिया लेस देन मैं बोल रही हूँ, तो क्या करेंगे हैं? राइट? तो ये आपको हमेशा याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये डिसीजन रूल है, दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। व्हाटएवर हैपेंस, ये केस रहेगा आपका कि p वैल्यू जो है आपकी अगर लेस देन 0.05 होती है तो आप रिजेक्ट करते हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट करें, बट बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग नल हाइपोथेसिस जो होता है वही गलत कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। सो वन टाइम इट हैपेंड, समवन सेड कि मैथ्स ऑप्ट करने के लिए, नॉर्मली मैथ्स ऑप्ट करने वालों के लोगों में क्या होता है कि मानते हैं कि लड़के लोग ज्यादा मैथ्स ऑप्ट करेंगे, लड़कियां कम मैथ्स ऑप्ट करेंगे, यही है ना? तो वहां पे कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। So you'll have to test the hypothesis that whether the boys are opting more mathematics as compared to girls. So what will be your null hypothesis in that particular case? हाँ जी, yes. So the correct
hypothesis statement will be there is no difference in opting in mathematics in boys and girls, the cases, right? If now, if researcher the wrong null hypothesis, like पहले से ही मान के चल रहे हैं और हम उसकी पॉसिबिलिटी मान रहे हैं कि वो रिजेक्ट होगा, तो जब आपका नल हाइपोथेसिस गलत कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो जो सॉफ्टवेयर है उसका एक डिफॉल्ट आना हुआ है उसने कि वो नल हाइपोथेसिस अनबायस्ड मान के चले, राइट? तो सिंगल टी टेस्ट जब आपका करते हैं, सिंगल सैंपल जो होता है आपका, उस केस में होता है व्हाटएवर सेटिंग अप, वो उसको मान के चलेंगे कि ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दैट व्हाट यू आर स्टेटिंग इज राइट, और हम फिर उसको पॉसिबल रिजेक्शन सैंपल हो जाता है। तो डिफॉल्ट जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ये मान के चलता है दैट इफ यू आर टेस्टिंग फॉर म्यू देन इट विल बी μ1 बराबर μ2 बराबर μ3 एटसेट्रा, राइट? एंड इफ इट गोज फॉर वेरिएंस, तो वेरिएंस में भी आपका नल हाइपोथेसिस हो जाता है कि वेरिएंस ऑफ सैंपल 1 इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ सैंपल 2 वेरिएंस ऑफ सैंपल 3। तो ये दो चीजें हमेशा जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आप अपना नल हाइपोथेसिस किस तरह से बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो आपका डिसीजन रूल है दैट हैज टू बी क्लियर। थर्ड, आपको ये बताया गया था कि हम लोग Z टेस्ट लगाते हैं, T टेस्ट लगाते हैं, ठीक है? फॉर मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली वुड बी अप्लाइंग T टेस्ट, राइट? यस, हाँ जी। हाँ, देखिए वेरिएंस के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेरिएंस का जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। नॉर्मली जो वेरिएंस के टेस्ट होते हैं, जैसे लिविंग्स टेस्ट आपका भी आएगा, उसमें नल हाइपोथेसिस होता है दैट द वेरिएंस ऑफ ग्रुप 1 इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ ग्रुप 2। मल्टीपल केसेस में n नंबर ऑफ वेरिएंसेस आ जाएंगे, राइट? तो उसका नल हाइपोथेसिस वो हुआ। उस केस में आप जो p वैल्यू है वो वेरिएंस के लिए टेस्ट करेंगे, राइट? और फिर वो मीन के लिए टेस्ट होगा। हाँ, सॉरी, व्हाई डू वी चेक वेरिएंस? ओके, सो आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, हाँ? उसमें आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ा था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। सो वेरिएंस जो होता है वो आपका बताता है, इट इज अ मेथड ऑफ मेजर ऑफ dispersion, right? That tells you that how much your data is dispersed or spreaded over entire region. हाँ, इसका इंपॉर्टेंस तब पता चलता है जब आपका जो वेरिएंस है या पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक ही तरफ कहीं पे स्क्यूड हो जाए तो, राइट? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स कि वो सेंट्रल वैल्यू से इधर भी उतना ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इधर भी उतना ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना? तो उस केसेस में जब आप टेस्टिंग करते हैं तो वो जो आपको रिजल्ट्स देंगे दैट विल बी मोर एक्यूरेट। किसी भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज यूजुअली द मीन और मीडियन, राइट? एंड द वेरिएंस, बिकॉज अगर आपका डेटा हेट्रोजीनियस होगा तो हेट्रोजीनियस में आपको डिस्पर्शन जो है वो ज्यादा मिलनी चाहिए। व्हाट इफ यू डोंट वांट हेट्रोजेनिटी, राइट? और व्हाट इफ यू वांट हेट्रोजेनिटी? ये दोनों चीजें होनी चाहिए ना। लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा तब भी आपके रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएंगे, और अगर बिल्कुल नहीं होगा यानी कि बिल्कुल होमोजेनियस हो गया तब आपके सैंपल लेने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दैट इज व्हाई यू नीड टू स्टडी वेरिएंस। नहीं, आप सिंगल सैंपल के लिए भी पढ़ सकते हो। सिंगल सैंपल में आप वेरिएंस जो है वो डिटरमाइन करेंगे ना कि वेरिएंस कितना है, और फिर उसमें आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालते हैं, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय रूट n, ठीक है? उसके बेसिस पे जज करते हैं। वेरिएंस के लिए यूजुअली जो आपके आते हैं दैट इज, एक तो लिविंग्स टेस्ट आता है, राइट? और भी है लेकिन वो फिर मल्टीपल सैंपल्स में चले जाते हैं, राइट? उसकी टेस्टिंग होती है। हाँ, जनरली जो आपका SPSS है वो 2 सैंपल के लिए देता है, सिंगल सैंपल में नहीं देता, राइट? अगेन आप जो वेरिएंस है वो कुछ एक अज्यूम कर मतलब
सिंगल सैंपल में आप क्या कर रहे हैं कि मीन की वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं, आप वेरिएंस की भी अज्यूम करेंगे तो यू कैन कैलकुलेट द वेरिएंस एंड देन कंपेयर, राइट? ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, तो हम लोग कहाँ थे कि आपको ये दो चीजें जो हैं वो याद रहनी चाहिए। सो पहला जो है हमें ये निकालना है कि वी स्टेटेड दैट आवर लेवल ऑफ एंजाइटी इज 35. So I am claiming that it is 35 and maybe some of you claim that it is not 35, right? So उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You apply t-test. So I was saying yes that z-test और t-test की बात हो रही थी. So जितना मैंने लेक्चर सुना है z-test किसी ने अप्लाई नहीं किया, राइट, अभी तक. सो नॉर्मली आपका जो z-test होता है दैट इज लार्ज सैंपल टेस्ट, तो हम लोग उसको अप्लाई नहीं करते हैं. तो SPSS जो होता है उसके लिए उसको आपको डिफरेंट Z स्कोर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं. वी डोंट गो फॉर दैट. व्हेन यू हैव स्मॉल सैंपल्स लाइक सैंपल ऑफ साइज 30 और 50, उस केस में आप t-test यूजुअली अप्लाई करते हैं. द बेसिक डिफरेंस इज कि आप बड़े सैंपल में t-test लगा लेंगे, लेकिन जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. फिर यू कैन नॉट क्लेम कि आपके कितने एक्यूरेटली आपके जो रिजल्ट हैं या कंक्लूजन है वो निकल रहे. लगा तो लेंगे आप, सॉफ्टवेयर है वो सारे रिजल्ट दे देगा, लेकिन दैट विल नॉट बी वैलिड इनफ. तो जब आप 50 से बड़े वाले सैंपल में चले जाएं और आपको इस तरह का करना हो तो आप Z स्कोर्स लगाइए, Z स्कोर्स कैलकुलेट करिए एंड दैट विल बी द बेटर सॉल्यूशन. तो ओके, सो वी हैव स्मॉल डेटा 24 है हमारे पास में, आराम से लग सकता है इसमें. तो पहली अजम्पशन हमें फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है ये चेक करना पड़ेगा, राइट? दैट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा. ओके, सो लेट्स जस्ट सी कि किस तरह से नॉर्मेलिटी चेक करते हैं. वैसे सर ने भी दिखाया था. वी हैव नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. उसमें आप लेगेसी डायलॉग्स में जाइए, लेगेसी डायलॉग्स में नीचे आइए, वन सैंपल केस टेस्ट. ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप डिस्क्रिप्टिव से भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, राइट? क्योंकि इसका ये होता है नल हाइपोथेसिस दैट योर पेरेंट पॉपुलेशन इज नॉर्मल, सो यू चेकिंग द नॉर्मेलिटी, राइट? ये आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में भी आएगा, so we don't have to worry about it. आपको खाली एक एंजाइटी चेक करना है, राइट? टेस्ट वेरिएबल डाल दिया. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपको ये फ्रीडम दी हुई है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन चूज कर सकते हैं कि पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है. समटाइम्स इट हैपेंस कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है या वेरिएबल अंडर स्टडी है, यू नो दैट इट विल नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्ट कर सकते हैं. बट यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने हैं, तो आपको नॉर्मेलिटी चेक करनी होगी. क्या हुआ? एनी कंफ्यूजन? नो, राइट? सो वी कैन मूव अहेड. हाँ, तो बता दो. ओके, अभी विजिबल है? ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज डू आस्क मी. ओके, तो मैं फिर से पाथ जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. हम यहाँ पे गए एनालाइज में. एनालाइज में आप जाइए नॉन पैरामेट्रिक में. उसमें पहले जो 3 है उनको मत ऑप्ट करिएगा, राइट? वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा विंडो दे देंगे. यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट. यहाँ पर आइए और वन सैंपल केएस टेस्ट लगाइए, राइट? इसी डेटा पे लगाइए. तो यू हैव टू चेक द नॉर्मेलिटी फर्स्ट, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट. पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए आपको नॉर्मेलिटी चेक करना जरूरी है. नॉर्मल यूज किया हुआ है आपने. पैरामीटर क्या डाला मैंने? एंजाइटी. एक साथ 2 पैरामीटर भी डाल सकती हूँ मैं. अभी हम एंजाइटी 1 चेक करेंगे, एंजाइटी 2 आप खुद से चेक करके बताइए. ये कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नॉर्मेलिटी किस से चेक करते हैं. यू हैव टेस्ट्स. तो हमारा प्रेफरेबल टेस्ट जो होता है नॉन पैरामेट्रिक का, दैट इज कोल्मोग्रोव एंड स्मिर्नोव टेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन चेक द नॉर्मेलिटी फ्रॉम ग्राफ्स एंड प्लॉट्स, जैसा कि आपको पहले स्पीकर ने बताया है, राइट? बट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट, वी प्रिफर टेस्ट्स, राइट? आप बॉक्स प्लॉट से भी बता सकते हैं, आप हिस्टोग्राम से भी बता सकते हैं, आप क्यू प्लॉट से भी बता सकते हैं. यू हैव मेनी ऑप्शंस, बट इट इज प्रिफर्ड दैट यू टेस्ट विद सम काइंड ऑफ टेस्ट, राइट? इसको आप कर दीजिए यहाँ से. ओके,
ये आपको कुछ पैरामीटर्स दे रहा है, एक टेस्ट स्टैटिस्टिक दे रहा है। तो देखिए पहले में उसमें n दे रहा है, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 24। स्ट्रिंग वेरिएबल्स की नॉर्मेलिटी तो नहीं चेक कर सकते हैं कि कर सकते हैं? कर सकते हैं, कैसे हैं? ग्राफ से? चलो बताओ अभी करके मुझे। इंटरेस्टिंग, राइट। सो देन वी हैव नॉर्मल पैरामीटर्स, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आपको, राइट? एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। द वन थिंग दैट यू आर कंसर्न्ड विद इज asymptotic significance. Asymptotic significance means p value जो आपके यहाँ निकालती है, that is 0.195. सबका हो रहा है? तो बताइए अगर मैं ये अज्यूम करती हूँ कि पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस, राइट? ये तो क्लियर है। वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0.05 आ रही है, दैट मीन H नॉट हैज टू बी रिटेन्ड ना, लेस देन रिजेक्ट होता है, तो रिटेन हुआ यानी कि योर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, राइट? पहली अजम्पशन जो है हमारी वो फुलफिल हो रही है। नीचे आपके कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो आपकी केएस वैल्यू, जो केएस की जो टेस्ट होता है उसका पर्टिकुलर एक फॉर्मूला होता है, उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू शो करता है, दैट इज ऑल। ठीक, ओके। सो नाउ एज वी सी दैट आवर डेटा इज नॉर्मल, दैट मीन्स कि हम इस पे पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम पहले टी टेस्ट लगाते हैं। तो टी टेस्ट के लिए आप जाइए एनालाइज में, दैट इज योर पार्ट। देन यू हैव कंपेयर मीन्स, बहुत ही इजी मेथड है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। एनालाइज में जाइए, देन कंपेयर मीन्स में जाइए, देन सिंगल सैंपल टी टेस्ट, राइट? नाउ यू हैड एंजाइटी 1। अब यहाँ पे नीचे आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, टेस्ट वैल्यू। So test value is that value that you are claiming to be right, right? So what you will put here is 35. Do me a favor, कुछ लोग 35 लिखें, कुछ लोग 40 लिखें, कुछ 55 लिखें, इस तरह से करिए, एक ही बार में डिफरेंस पता चल जाएगा। Don't go with 35, all of you. Just change the values. I'm saying it's 35. Let's say you are saying it 40 to be 40 and 55. एक extreme value भी डालिएगा और एक lowest value भी डालिएगा, right? So you have your test value now. Okay. Options में आपके दिखा रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हम स्टैंडर्ड टेस्टिंग करते हैं अपनी। 95% इज, दैट मींस इट इज 0.05। ओके, राइट। क्लिक कंटिन्यू। उसमें आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो बस आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। नाउ वी क्लिक ओके। तो देखिए आपके पास में 3 टेबल्स आ रही हैं यहाँ पे, एक स्टैटिस्टिक बताएगा, एक टेस्ट अप्लाई किया वो बताएगा, और इफेक्ट के साइजेस बताएगा, राइट? और जो आपका मेन इंपॉर्टेंट टेबल है दैट इज दिस वन। ओके, सो इसमें आपके पास में जो पहली है दैट इज काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कि आपका एंजाइटी में टोटल ऑब्जर्वेशंस उसने क्या लिए हैं, दैट इज 24। उसका एवरेज क्या लिया है, दैट इज 43.5। तो अगर हम 35 मानेंगे तो काफी डिफरेंस रहेगा। कितने लोगों ने 40 माना है, 40 तक? ओके, ग्रेट। और एक्सट्रीम वैल्यूज किसने लिए, 25 और 55? 55, ठीक।
Okay, so I have taken it to be 35. तो यहाँ पर देखिए आपका जो सिग्निफिकेंट टू टेल्ड वैल्यू आ रही है, ये वाली टेबल जो बीच वाली टेबल है आपकी, वर्जन का डिफरेंस हो सकता है कि शायद आपको टेबल्स अलग अलग दिखाएं। मेरे उस हाँ, जिनका पुराना वर्जन है उसमें नीचे इफेक्ट साइज नहीं दिखाएगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो बीच वाला टेबल है आपका वन सैंपल टेस्ट, उसमें पहला तो टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू दिखा रहा है 3.930, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज n-1 standard, so that will be 24 minus 1, that is 23. Then we have two-tailed significance, that is your comparative p value. मीन डिफरेंस यानी कि एवरेज डिफरेंस जो आपकी वैल्यू दी है उससे कितना रहा है, दैट विल बी, बिकॉज जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है वो होता है x माइनस म्यू, राइट। तो उसमें आपका वो वैल्यू देखेगा, चेक करता है, तो मीन डिफरेंस बता रहा है वो। एंड देन यू हैव 95% कंट्रोल इंटरवल ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस कितना इधर इधर वेरी कर रहा है वो दिखा रहा है। तो मेरे पास में जो आ रहा है द डिफरेंस इज लेस देन 0.001, मतलब बहुत ही कम वैल्यू आई है। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे 0.05 से, तो ये लेस देन 0 आ रहा है, सॉरी लेस देन 0.05 आ रहा है। तो क्या हुआ इसमें, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है। नल हाइपोथेसिस क्या थी, दैट एवरेज एंजाइटी इन ग्रुप 1, सॉरी फर्स्ट एंजाइटी लेवल जो है वो आपका दैट इज इक्वल्स टू 35 इज रिजेक्टेड, एवरेज एंजाइटी इज नॉट इक्वल्स टू 35, राइट। अग्री कर रहे हैं सब लोग। आप ऊपर वन सैंपल टी स्टैटिस्टिक में जाइए, मीन वैल्यू क्या दिखा रहा है 43.5, इट इज नॉट इक्वल्स टू। अब टेस्ट का इंपॉर्टेंस ये होता है कि इज इट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट, द डिफरेंस इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट। हो सकता है यहाँ पे 40 आ जाता, 35 से और करीब, या 36 या 37 आ जाता, दैट वुड हैव बीन डिपेंडिंग ऑन योर सैंपल, कि वो जो सैंपल के अकॉर्डिंग जो आपकी एंजाइटी आ रही है वो स्टैटिस्टिकली आपकी सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही है या नहीं कर रही। क्लियर है ये पॉइंट। नाउ आपने 40 किया है, तो आपका क्या आ रहा है, टू टेल सिग्निफिकेंस 0.119, राइट। तो नाउ जिन्होंने 40 माना है, एज्यूम किया है, उनका सिग्निफिकेंट जो वैल्यू आ रही है टू टेल, दैट इज 0.119, विच इज हाँ टू साइडेड, विच इज ग्रेटर देन 0.05। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, दैट मीन्स द एवरेज वैल्यू इज इक्वल। तो डेविएशन आपको मिलेगा, लेकिन कितना डेविएशन वो ले रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। तो स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो दैट मीन इज इक्वल्स टू 40। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट। जिन्होंने 55 किया था उनका भी रिजेक्ट होना चाहिए, 0.001, मतलब समझिए, भले आप बड़ा अज्यूम करें या मीन से छोटा अज्यूम करें, द हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। हाँ, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते 43.5 कैलकुलेट करके, तब भी वो क्या हो जाता है, एक्सेप्ट ही होता है हायर प्रोबेबिलिटी के साथ। क्लियर है सबको, दैट इज हाउ यू अप्लाई योर टेस्ट। अगर आप इसी में थोड़ी सी डेटा के साथ में छेड़खानी कर देंगे तो आपका मीन चेंज हो जाएगा, हो सकता है 35 पे वो एक्सेप्ट कर ले नल हाइपोथेसिस को, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, राइट। ट्रायल एंड एरर हमेशा चलता रहता है। नाउ वी हैव two sample t-test. So in two sample t-test you have studied independent samples and related samples. तो यहाँ पे हमने अभी कहा था कि independent samples आपके क्या हुए, groups, right? Both the groups are independent to each other. So let's see कि उसमें anxiety में changes हैं या नहीं है. So we want to check कि जिन लोगों को पिक्चर दिखाया है स्पाइडर का और जिनको एक्चुअल स्पाइडर दिखाया है, उनमें एंजाइटी लेवल जो है वो डिफर कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो आपको, आप अगर खुद से अज्यूम करें तो जिनको एक्चुअल स्पाइडर दिखाया है उनमें एंजाइटी लेवल ज्यादा होना चाहिए, हाँ। लेकिन हम नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि कोई फर्क नहीं है, दोनों में बराबर है, ठीक। तो लेट्स सी, इसका सेम पाथ है
एनालाइज में जाएंगे, देन कंपेयर मीन्स then you go to independent sample t-test, right? and उस पर क्लिक करिए। चेक तो आपको एंजाइटी करनी है, वही वेरिएबल टेस्ट होना है। और फिर आपने क्या किया, दो ग्रुप्स जो हैं आपके हुए, स्पाइडर एंड द पिक्चर। अब यहाँ पे वो कैसे लेगा कि स्पाइडर है कि पिक्चर है? सो यू विल हैव टू डिफाइन ग्रुप्स। जहां पे वैसे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, दैट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग। यू गो टू डिफाइन ग्रुप्स। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इसमें डाला हुआ है, हम इसको रीसेट करेंगे। हमारा ग्रुप क्या था? 0 and 1। किसी ने चेक किया है? ऐसे बोल रहे हैं। So the 0 and 1 are two groups, right? इसमें हम अपने मन से नहीं कर सकते, दो ही ग्रुप थे। अगर 3 करेंगे तो वो मल्टीवेरिएट में हो जाएगा। सबका हो गया? कंटिन्यू। इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना है, 95% पे करना है। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से कंफ्यूजन पे। ये आपका आ गया है t-test फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। नाउ पहला जो आपको दे रहा है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स दे रहा है अबाउट योर वेरिएबल्स, राइट? दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करिए। आप सब पहले आ जाइए उस पॉइंट पे, देन विल टॉक। श्योर। एक बार पाथ फिर से रिपीट कर देते हैं। एनालाइज में जाइए, देन गो टू कंपेयर मीन्स, राइट? ये याद करना भी बहुत आसान है। आप मीन कंपेयर करें तो उसी टैब में जाएंगे जहां पे मीन होगा। ओके, then you go to independent samples t-test, right? Click on that. आपको जो भी वेरिएबल टेस्ट करना है, यू वांट टू टेस्ट एंजाइटी 2 तो एंजाइटी 2 करिए। बट सिंस हम लोग पहला जो रिएक्शन है ग्रुप का वो नोट कर रहे हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे, एंजाइटी 1 को सेलेक्ट करेंगे फॉर टेस्टिंग वेरिएबल। ओके, देन वी हैव ग्रुपिंग वेरिएबल। ग्रुपिंग वेरिएबल का मतलब है किस बेसिस पे आप अपने ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, राइट? अब क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं एंड वी ऑलरेडी स्टेटेड दैट द टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स दैट वी हैव आर स्पाइडर एंड द पिक्चर, राइट? 0 and 1। ओके, सो यू गो टू दैट एंड उसको आप ग्रुपिंग वेरिएबल में डाल दीजिए। देन यू हैव टू डिफाइन द ग्रुप्स, बिकॉज अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो वो खुद से ले नहीं पाएगा। यू हैव टू असाइन द ग्रुप्स, राइट? सो यू गो टू डिफाइन ग्रुप्स टैब, क्लियर? एंड देन आपको स्पेसिफाइड वैल्यूज देनी है 0 and 1। इसमें नीचे आपको एक कट पॉइंट का भी ऑप्शन आ रहा है, वो डिफरेंट है। कट पॉइंट होता है जब आप खुद से कोई स्केल वैल्यू देना चाह रहे हैं, अगर लेस देन और ग्रेटर देन हो, तो उसके लिए आपको जो ग्रुपिंग वेरिएबल होगा वो भी आपका स्केल वेरिएबल होगा, ठीक है? उसके बाद में जाएंगे। सो यू कंटिन्यू। अब आपका क्वेश्चन मार्क्स नहीं आ रहे, अब आपका 0 1 दिखा रहा है आपको। नाउ यू कैन प्रोसीड। एस्टिमेट इफेक्ट साइज को हटा दीजिएगा, ओके करिए। यू गेट दिस टेबल, राइट? यू कैन सी दैट। अब इसमें जो पहला टेबल है, जनरली जो फर्स्ट टेबल आता है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाता है, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, मीन क्या है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है? तो इसमें जो पहला है वो आपको पता चल जाएगा। एन जो है आपका, क्योंकि 24 टोटल था, वी हैड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, 12 उसको और 12 उसको,
दोनों का मीन है आपके पास में, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, राइट। ओके, इसमें इस चीज का ये भी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपकी कोई मिसिंग वैल्यू होती है, मिसिंग वैल्यू एक्सप्लेन किया गया है आपको थोड़ा बहुत, कई बार जो डेटा होता है उसके इनपुट करने में मिसिंग वैल्यू आती है, तो ये जो आपकी पहली टेबल है ना, वो ये बता देती है कि आपकी अगर कोई मिसिंग वैल्यू है डेटा में, तो एक टैब नीचे और बनकर आ जाता है जिसमें मिसिंग वैल्यू लिखा हो, ठीक है। ओके, नाउ यू हैव योर टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का ये भी फायदा है, आप उसको अनोवा की तरह भी यूज कर सकते हैं, वैसे दैट इज पार्ट ऑफ इट। ना जब इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगता है आपका, तो उसमें पहले वो दो चीजें देखता है कि क्योंकि आपका दो ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, तो दो ग्रुप में फर्स्ट दे चेक वेदर देर इज एनी काइंड ऑफ हेटेरोजेनिटी प्रेजेंट इन द ग्रुप और नॉट, राइट, यानी कि आपका जो डेटा है वो होमोजेनियस है, हेटेरोजेनियस है, कैसा है, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों ग्रुप हैं आपके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखा रहा है दैट इट शोज दैट इक्वल वेरिएंस इज अज्यूम्ड, कि अगर आप इक्वल वेरिएंस का मतलब क्या हुआ, दोनों में बराबर हेटेरोजेनिटी है दोनों ग्रुप्स में। और दूसरा है आपका इक्वल वेरिएंस इज नॉट अज्यूम्ड, कि दोनों में जो वेरिएंस है यानी कि डिस्पर्शन है वो डिफर कर रहा है। तो ये अगेन ये आपके डेटा का एस्पेक्ट है कि अगर आपका डेटा दोनों जो जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं दैट शुड बी कंपेरेबल एट फर्स्ट। अगर वो एक होमोजेनियस होगा एक हेटेरोजेनियस होगा या दोनों के वेरिएंस भी डिफर कर रही होंगी, तो उस केस में वो रिजल्ट तो अगेन आपको दे देगा, बट योर स्टडी विल नॉट बी इफेक्टिव, ठीक है, वैलिड नहीं रहेगी वो स्टडी, ठीक। तो उसके लिए पहले जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ये कर रहा है कि एफ टेस्ट लगा रहा है। एफ टेस्ट इज टू चेक द वेरिएंसेस, के वेरिएंसेस में डिफरेंसेस हैं या नहीं है। तो जब हम टी टेस्ट के लिए कर रहे थे तो μ1 इज इक्वल्स टू μ2 इज इक्वल्स टू μ2 μ3 ये कर रहे थे। इस केस में क्या होता है, आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो क्योंकि आपके पास में दो ग्रुप्स हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर। सो इट इज चेकिंग फॉर कि अगर आपका इक्वल वेरिएंस अज्यूम करें वो वाला आप टी टेस्ट में आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे या नॉट अज्यूम में प्रोसीड करेंगे, राइट। तो ये वैल्यू ही उधर देगा जब आपका जहाँ की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। अगर वो नॉट अज्यूम में जाएगा तो आपका वो वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करती। यस, हाँ, नहीं, एक दोनों में वेरिएंस बराबर, मतलब जितना डिस्पर्स एक ग्रुप है उतना ही डिस्पर्स दूसरा ग्रुप। हाँ, वो तो वेरिएंस की वैल्यू से देखेंगे आप, वेरिएंस का वैल्यू कितना है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ग्रेटर देन 0 में कितना भी हो सकता है, जितना कम वेरिएंस होगा उतना आपका होमोजेनियस होगा डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है ऊपर, देखिए आप फर्स्ट टेबल में स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वो वेरिएशन है, ठीक है। ओके, सो नाउ द हाइपोथेसिस फॉर इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड, उसमें आप देखिए सिग्निफिकेंस वैल्यू अगेन वो ले रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.386, यानी कि यहाँ का जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है। दैट मीन्स के दोनों ग्रुप्स में वेरिएंसेस जो है वो सिमिलर है, राइट, स्टैटिस्टिकली वो इक्वल है। क्लियर है सबको, राइट, ऑन द बैक सबको क्लियर है, राइट। ओके, सो आप अब क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट रो उनको कंसिडर करेंगे। वैल्यूज बराबर ही आएंगी यूजुअली, लेकिन जो आपके लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगे, दैट इज ऑल। ये आपको लेकिन बता देगा कि आपका जो वेरिएंस का टेस्ट है वो अप्रूव हो रहा है, राइट। अगर आपका ये रिजेक्ट हो जाता तो दैट मीन्स कि इक्वल वेरिएंसेस दोनों ग्रुप में नहीं। क्लियर, आपके जो दोनों ग्रुप हैं वो उसका जो वेरिएंस है या डिस्पर्शन है वो डिफर कर रहा है स्टैटिस्टिक्स। देन यू हैव टू चेक, अगर डिफर कर रहा है तब आपको देखना पड़ेगा कि आपका वेरिएंस इक्वल अजम्पशन जो है वो फॉलो नहीं हो रही दोनों में, यानी कि दोनों में जो एंजाइटी लेवल के वेरिएशन है वो उसकी वजह से भी हो सकते हैं क्योंकि वेरिएंस अलग अलग आ रही है ना, कोई और रीजन भी एग्जिस्ट कर सकता है आपका वेरिएंस के लिए,
तो अगर आपके वेरिएंस बराबर है तब आप मीन की चेकिंग कर रहे हैं, देन इट विल बी वैलिड. क्लियर एवरीवन? ओके. So now for t-test you have to check the significant two-tailed value. That is coming out to be 0.107. 0.107 आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ? Hypothesis is accepted, मतलब retained, right? इसका मतलब क्या था? Null hypothesis क्या था? There is no difference. और alternate क्या हुआ? There is difference. और यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो रहा है, उसको रिटेन कर रहे हैं, सॉरी एच नॉट आपका रिटेन हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एंजाइटी लेवल. तो भले ही आप अपने ग्रुप को पिक्चर दिखाएं या फिर आप उनको एक्चुअल स्पाइडर दिखाएं, उनके एंजाइटी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आया है स्टेटिस्टिकली. तो हम जो जनरल परसेप्शन लेके चल रहे थे कि होना चाहिए, वो हमारा डेटा जो है वो कह रहा है कि नहीं. राइट. तो सैंपल से जो हम लोग ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा जो एच नॉट है वो रिटेन होता है. क्लियर? राइट. ओके. we go for checking the effectiveness of our anti-anxiety medicine. हाँ, हमने ये भी देख लिया कि आपके ग्रुप में कोई फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंजाइटी लेवल उनके मेजर कर लिए. नाउ दे वर गिवन आपका एंटी एंजाइटी मेडिसिन. वैसे आप अगर ऑब्जर्व करें, आप एंजाइटी 1 और एंजाइटी 2 को ऑब्जर्व करिए, डेटा में कुछ सिमिलैरिटी लग रही है कुछ? लेट्स सी. डिक्रीज हो रहा है. वेरी नाइस. और तो ये कैलकुलेट करके बनाया था, तो आपको बाद में अगर ट्राई करना हो तो सिंपल कैलकुलेट कर लीजिएगा. ठीक है? तो न्यू वेरिएबल कैलकुलेट करना बताया होगा ना आपको, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वेरिएबल, रीनेम इनटू न्यू वेरिएबल, रिकोड इनटू न्यू वेरिएबल. बताया कि नहीं बताया? ओके, कोई बात नहीं. इट्स एन ऑप्शन जिसमें आप नया वेरिएबल जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं खुद से. तो ये कंप्यूटेड है, आपने -5 कर दिया, मतलब सबके रिड्यूस हो गई. राइट. ओके. सो हम पहले इससे टेस्ट करते हैं एंड देन फॉर फन विल चेंज अ फ्यू वैल्यूज, क्या डिफरेंस आता है. So now we know that the groups are related. So what you'll have to do is go to analyze, again go to compare means, and then you have paired sample t-test. अब आपको इसमें जो है पेयर जो है वो डालने पड़ेंगे. पहला पेयर क्या हुआ? एंजाइटी. अब देखिए आप इसमें ग्रुप से वेरिएशन नहीं देखना है. हमें नहीं फर्क पड़ता है कि आपका स्पाइडर है पिक्चर है, क्योंकि आपका पिछले वाला जो टेस्ट है उसने बता दिया था कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा. राइट. तो यू डोंट हैव टू डू दैट. आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको अब एंजाइटी चेक करनी है. तो आप दूसरा क्या हुआ आपका वेरिएबल, ये हुआ. इसको हटा दीजिएगा प्लीज, इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए इफेक्ट साइजेस. ओके. क्लियर है पाथ सबको, वैल्यू सबको? मैं फिर से बताती हूँ. go to analyze, then go to compare means, then go to paired sample t-test. Okay, select that. right. आपका वेरिएबल 2 दिखा रहा है. पेयर फर्स्ट पेयर, मल्टीपल होते तो आप 2-3 पेयर भी एक साथ चेक कर सकते थे. कुछ होता नहीं है, आपको टेबल्स अलग अलग बता देंगे वो. नॉट वेरी मच डिफरेंट. देन यू गो टू फर्स्ट वेरिएबल एंड देन सेकेंड वेरिएबल. तो आपको ये चेक करना है कि एंजाइटी में कुछ मेजर डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इसको अनसेलेक्ट कर दीजिएगा प्लीज. एस्टिमेट इफेक्ट साइजेस. ना हमें बूटस्ट्रैप करना है. बूटस्ट्रैप में आपके सब्सिक्वेंट सैंपल्स वो होते हैं, जनरेट होते रहते हैं. बूटस्ट्रैपिंग इज अ मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड है जब आपको और मल्टीपल सैंपल्स जो हैं वो जनरेट करना है विद सम डेटा. राइट. बट वी डोंट डू दैट जनरली. सिमुलेशंस जब करनी होती है तो सिमुलेशंस के एक तरीके होते हैं, बूटस्ट्रैप एंड मोंटे कार्लो मेथड्स, दे आर ऑल. हाँ, उसी डेटा पे उसी बेसिस पे वो सिमुलेट करते हैं.
ओके, अब देखिए आपकी वार्निंग एक आ रही है। कर दिया सबने एग्जीक्यूट? वार्निंग इसलिए आ रही है बिकॉज नीचे देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस इज 0। ये इसलिए आया क्योंकि मैंने सब में बराबर चेंजेस किए, -5 कर दिया था। अब आप कुछ मत करिए, आप इस वेरिएबल में एंजाइटी 2 में जाके, ऐसे एरर्स भी आते हैं बहुत बार, दैट मीन्स योर डेटा हैज सम इश्यू, मे बी एक्चुअल में, क्योंकि प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा वेरिएशन आना ही नहीं चाहिए। सब में 5-5 का रिडक्शन थोड़ी आएगा, हो सकता है कुछ में बढ़ जाए कुछ में घट जाए, राइट? तो वहां पे आ सकती हैं चीजें। दूसरा हो सकता है क्योंकि आपका सैंपल तो कोई भी टेस्ट, वो सॉफ्टवेयर तो टेस्ट लगा देगा अगर डेटा अवेलेबल हो, तो हो सकता है आपका डेटा जो है वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं, दोनों चीज, राइट? अब हम थोड़ा सा एंजाइटी को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने हिसाब से। तो 25, 30, 40 ये सब दिया हुआ है। आप प्लीज कोई भी 3-4 वेरिएबल जो है, 3-4 ऑब्जर्वेशंस, उनको अपने हिसाब से चेंज करें। डू इट योरसेल्फ, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 50 है मेरे पास में, मैंने उसकी एंजाइटी बढ़ा के 60 कर दी, सॉरी। जब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी जाएंगे, तो जब ये सारे ट्रायल्स और ये सब होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, तो नेचुरल सी बात है, वहां पे भी सारी चीजें तो फेवर में हो नहीं सकती, क्योंकि एक जब आपके पास में पेशेंट आता है तो they have multiple issues. Maybe some might be having some kind of BP issue, right? हो सकता है किसी को ऑलरेडी एंजाइटी के इश्यूज हो, किसी को नहीं हो, तो उन सब चीजों में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए थोड़ी सी मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ अपनी। कर लिया अब आपने चेंज। अब सेम चीज करिए, वापस उसी पाथ में जाइए, गो टू एनालाइज, कंपेयर मीन्स, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, पुराने वाले को, यस, शायद ऑनलाइन किसी ने क्वेश्चन पूछा, हैंड रेज किया है क्या? ओके फाइन। सो एक ग्रुप आपका हुआ, ये दूसरा, ये सेम चीज करना है आपको, राइट? अब अप्लाई करिए जरा। सब अपना अलग अलग करके अप्लाई करिए प्लीज, क्योंकि मेरा डिफरेंस आएगा, राइट? मैंने अपने मन से किया चेंज, आपने अपने मन से किया होगा। तो अब आपको वो जो एरर आ रहा था या जो वार्निंग आ रही थी वो हट गई, राइट? नाउ यू कैन सी कि आपका पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट भी लग सकता है, पेयर्ड सैंपल कोरिलेशन भी निकाल रहा है, एंड पेयर्ड सैंपल की स्टैटिस्टिक्स भी दे रहा है। तो अगेन जो पहले वाले का जो मीन है आपका, दैट इज 43, एंजाइटी, एंजाइटी 1, एंजाइटी 2 इज 39.66, दोनों के ऑब्जर्वेशन सेम होने चाहिए, ठीक है? तो जो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट होता है वो डिफरेंस बेस्ड होता है कि दोनों में, दोनों सैंपल्स का डिफरेंस क्या आ रहा है। तो x1 x2 दो अगर वेरिएबल है दोनों ग्रुप के, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है? अब इसमें देखिए पेयर्ड सैंपल कोरिलेशन भी निकाल रहा है, दैट द वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड, बोथ द वेरिएबल्स हैज टू बी, ऑब्वियस सी बात है, जब पेयर्ड है तो कोरिलेशन अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा होगा दैट मीन्स कि वो उतने ज्यादा अच्छे से पेयर्ड है, राइट? तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ रहा है, 854 आ रहा है, और पी वैल्यू भी उसको अग्री कर रही है, ठीक है, दैट देयर एग्जिस्ट कोरिलेशन। नहीं, मैं उल्टा बोल रही हूँ, नल हाइपोथेसिस होगा द वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट, तो वो रिजेक्ट होगा, दैट मींस देयर आर कोरिलेटेड। वही मैं बता रही हूँ, मैंने इसीलिए मैंने कहा, मैंने पहले उल्टा बोला।
तो जो कोरिलेशन का टेस्ट लगा रहे हैं वो विद आर टेस्टिंग कि दे आर कोरिलेटेड और नॉट। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या होता है, दैट द वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, अगर लेस देन 0.05 होगा दैट मीन्स योर H नॉट इज रिजेक्टेड, दैट मीन्स द वैल्यूज आर कोरिलेटेड। ठीक, and if it is greater than 0.05 that means the values are not correlated statistically। हाँ, तो यहाँ पे हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है H नॉट, that means the values are not correlated to each the values are correlated to each other, not independent। क्लियर हो रहा है ना सबको? प्लीज अग्री करिएगा उससे। हाँ, तो that means the values are observations are correlated to each other। ऑल्सो अगर आप उसके स्टेटिस्टिक पे देखिए, कोरिलेशन जो आ रहा है दैट इज 0.854। आपको मालूम है ना कोरिलेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है? हाँ, तो -1 से +1 जाती है। अगर 0 के पास में आ रही होती दैट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट हो रहे होते आपस में। इट इज गोइंग टुवर्ड्स 1 दैट मीन्स कि दे आर हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। तो ये भी हो गया हमारा, दैट मीन्स कि जो उनका पेयरिंग है दैट इज एप्ट, मतलब हमारे जो पेयर हो रहे हैं वो कोरिलेटेड। ओके, देन यू गो फॉर सैंपल पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। अब आप देखेंगे कि जो डिफरेंस आ रहे हैं एंजाइटी में वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। आपके एक मेडिसिन के देने के बाद में जो आपके डिफरेंस आ रहा है एंजाइटी के लेवल्स में वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। राइट, ओके, क्लियर है ये सबको? नाउ लुकिंग एट योर सिग्निफिकेंट टू टेल टेस्ट वैल्यूज, ये बताइए कि ये आपका एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है नल हाइपोथेसिस? हाँ जी, मेरा वाला रिजेक्ट हो रहा है, कितनों का एक्सेप्ट हो रहा है? देखो वैल्यू उतनी चेंज करी होंगी आपने, फिर मतलब वैल्यू चेंज करी है ना, तो इट डिपेंड्स कि क्या वैल्यू चेंज करनी। अगर आप अपने डेटा को समझिए, ठीक है? हाँ जी, बताइए। हाँ, व्हाट द कंक्लूजन? नो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप अगर आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वैल्यूज जा रही, मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस, आप क्या देखना चाह रहे थे कि एंजाइटी लेवल्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं या नहीं। अगर आपका जो 25, 30, 35, 40 है, अगर उसमें आपने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए, मतलब बड़े चेंजेस नहीं किए और नंबर क्वांटिटी में भी चेंजेस नहीं किए, तो वो चेंजेस सिग्निफिकेंट नहीं होने चाहिए, है ना? हाँ जी, बोथ 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 साइड जा सकता है ना, बढ़ रहा है या घट रहा है। और हमें तो इफेक्टिवनेस ऑफ अ मेडिसिन विल बी चेक वेदर एंजाइटी लेवल रिड्यूस होने पर। तो मैंने क्या किया था, कहीं पे मैंने 60 भी वैल्यू डाली है और कहीं पे मैंने कम कम वैल्यू चेंजेस की है। तो जितना ज्यादा आपके ऑब्जर्वेशन में चेंजेस आएंगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट जो है वो इफेक्ट करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो अगर ज्यादा चेंजेस आएंगे दैट मीन्स द मेडिसिन इज इफेक्टिव। अगर एंजाइटी ज्यादा लेवल पे डिक्रीज करेगी दैट मीन्स द मेडिसिन इज वेरी इफेक्टिव। हाँ, अगर नहीं डिक्रीज करेगी दैट मीन्स द मेडिसिन इज नॉट इफेक्टिव। तो वो आपने जिस तरह से अपना डेटा चेंज किया है, आपने मैक्सिमम वैल्यूज जो है एंजाइटी की, वो आपने आपके एंजाइटी 1 वाला जो ग्रुप था उससे अगर सब में कम करी है, सब में कम करी है और सिग्निफिकेंट चेंजेस डाले हैं, तो आपका 100% आपका आ जाएगा कि योर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बढ़ा दीजिए। हाँ, तो दे वुड बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इधर। हाँ हाँ, तब भी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आएंगे। ये जो टेस्ट है आपका टू टेल बता रहा है, हाँ ये प्रॉब्लम है। टू टेल टेस्ट बता रहा है दैट मींस μ1 इज नॉट इक्वल्स टू। हाँ, हाफ करके कर सकते हैं और आपको मालूम है कि म्यू शुड बी, इतना आपको डेटा से पता चल जाता है कि शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। कितने ऑब्जर्वेशन जो है आपके ग्रेटर देन μ1 आ रही है ना? आपको देखिए फर्स्ट टेबल जाइए, ये जो पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखा रहा है, तो वो दोनों का एवरेज दिखा रहा है, राइट?
तो उस केस में आपको मालूम है कि मीन वैल्यू जो है वो ग्रुप 1 की 43 है और जो दूसरे वाले की दैट इज 39। तो ऑन एन एवरेज आपकी जो एंजाइटी है वो डिक्रीज हुई है। ठीक, तो आप उस हिसाब से अपना कंक्लूड कर सकते हैं रिजल्ट, है ना? ओके, हाँ जी, नो डिफरेंस ना। एक मिनट, हाँ दो। सो यू आर सेइंग कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपका कि μ1 इज इक्वल्स टू μ2, राइट? अब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट होगा, दैट मीन्स के देयर इज नो डिफरेंस, तब तो हमारा मेडिसिन कोई इफेक्टिव नहीं। जब एक्सेप्ट हो रहा है कि आपका, that means कि there is significant difference between the two groups, then you can go for mean value, right? Average value saying that पहले जो anxiety थी that was 43 and जो बाद में anxiety हुई वो 39 हुई है, that is showing कि जो आपकी जो medicine है वो effective हो रही है। हाँ, then we'll state the statement that it is the mean value of the, आपको p वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि p वैल्यू जो है वो आपकी वैसे तो टू टेल्ड 0.003 आ रही है, तो वन टेल्ड भी लेस देन 0.003 ही आएगी, है ना? 0.0015 हो जाएगी वो, तो वो दोनों रूल्स में मतलब दोनों कंडीशन में वो फॉलो करेगा। हाँ, एंड यू कैन सी द एवरेज वैल्यूज, तो ऑन एन एवरेज द एंजाइटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ योर मेडिसिन। लेकिन मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि आपको डेटा तो ये दिखा रहा है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि जो आपका मीन है, मतलब ये आपको फिर डेटा से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है आपके डेटा में, है ना? हाउ विल चेक दैट दिस एंजाइटी इज रिड्यूसिंग? बता मैं हम सेइंग ना ग्रुप 1 में 43 है एंड ग्रुप 2 में 39 है एवरेज, isn't it? So if for example this is your research, then in a say that it is reducing that, right? You can say that yes, also looking at your significant values, this is also important क्योंकि आप रिजेक्ट तो उसी के बेसिस पे कर रहे हो ना, रिजेक्ट या एक्सेप्ट तो उसी के बेसिस पे कर रहे हो, तो यू हैव टू मेंशन दैट। व्हाट विल स्टेट अबाउट दिस? देखिए मेरे जो मैंने जो डेटा में मॉडिफिकेशन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, सिंस द सिग्निफिकेंट वैल्यू इज लेस देन 0.05, then we reject our null hypothesis, which was there is no significant difference. That means there is a significant difference between the anxiety level of both the groups, anxiety 1 and anxiety 2. And also, since the average value of anxiety 1 group is greater than the average value of anxiety 2 group, hence we can say that the level of anxiety is decreasing on average. Okay, now it's clear. But हाँ, मैं इस केस में ये जरूर कहना चाहूंगी that you'll have to observe your data because mean gets fluctuated by the values, extreme values. उससे फ्लक्चुएट होता है, मीन का नेगेटिव पॉइंट है, तो एक बार ऑब्जर्व करना चाहिए डेटा। You will have to be loud. No, I'm saying in the mean values, if we are not finding any significant difference. हाँ जी. But in the p value, we are getting like. ऐसा होगा नहीं ना, नहीं होगा। वो टेस्ट ही इसी बेसिस पे कर रहा है कि एक्चुअल जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी अपने पास में क्या पॉइंट नहीं, क्योंकि ये जो है वो टू टेल्ड सिग्निफिकेंस ले रहा है ना, तो यू कैन नॉट से कि लेस देन ग्रेटर देन। आपका नल हाइपोथेसिस तो ग्रेटर देन लेस देन दोनों हो सकता है, बट क्योंकि ये टू टेल्ड सिग्निफिकेंस है, इट शोज दैट नॉट इक्वल्स, राइट? तो इन दैट केस अगर वो ग्रेटर देन हो रहा है या इक्वल्स टू हो रहा है, दैट यू कैन कंक्लूड विद लुकिंग एट द मीन alternate hypothesis. That is what I'm saying, right? Okay, clear? Shall we proceed? Okay, so that is all with your testing of means.
दूसरे डेटा सेट आपको 2 दिए होंगे, दोनों नहीं खोलने हैं आपको, सिर्फ एक ही खोल के रखना है। अब आता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में पहला है वन सैंपल केएस टेस्ट, राइट, जो हमने पहला किया था, राइट। तो दैट चेक्स द इट कैन से, यू कैन से कि जो आपका डेटा है वो पेरेंट पॉपुलेशन को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ये है। तो वो नॉर्मल भी हो सकती है, वो पॉइसन भी हो सकती है, वो एक्सपोनेंशियल भी हो सकती है, बायनॉमियल भी हो सकती है। बट यूजुअली जब हम किसी भी वेरिएबल को स्टडी करते हैं, वी अज्यूम के लॉन्गर रन में वो जो फिनोमेना जो आप स्टडी कर रहे हैं दैट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगेन ये आपके वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसिडेंस ऑफ HIV और कैंसर नीड नॉट बी नॉर्मल लॉन्गर, ठीक है। कुछ चीजें जो रेयर हो रही हैं, मेंटल डिप्रेशन और ये सारी चीजें जो है हो सकता है वो नॉर्मल ना फॉलो करें, बट देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आपका डेटा स्टडी करके। जब आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ से पता चलता है कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वो हो सकता है। हो सकता है किसी भी तरह का ना मिले, इराटिक मिल जाए, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन योर डेटा। तो जब हम केएस टेस्ट लगाते हैं तो केएस टेस्ट बेसिकली मानता है कि आपका जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम योर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और स्टैंडर्ड वे में द सैंपल बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो पहला तो हमने लगाया ही था, अभी फिर से लगा के देखना है तो आप फिर से चेक कर सकते हैं। आप क्या करिए, एनालाइज में जाइए। मैं एंजाइटी 1 के लिए आप लोगों ने चेक किया था। नाउ ट्राई फॉर एंजाइटी 2 वेदर इट इज नॉर्मल और नॉट। डू दैट ऑन योर ओन। आपको पाथ नहीं याद आए तो फिर बताइए। मैं पाथ नहीं बता रही हूँ आपको क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। और किसी भी वे में आपको पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी शायद बताया होगा केएस टेस्ट लगाना। आप बस केएस टेस्ट लगा के मुझे बताइए कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मल है या नहीं। हाँ जी, टेस्ट वैल्यू केएस टेस्ट में नहीं लगती है। वन सैंपल टी टेस्ट, अच्छा वो नहीं, केएस टेस्ट में आपको टेस्ट वैल्यू देनी नहीं है। हाँ, टी टेस्ट लगाना ही नहीं, मैंने उससे पहले नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए आपको कहा था ना। जब आपने नॉर्मेलिटी चेक करी थी तो आपका आया था एंजाइटी 1 इज नॉर्मल, राइट। वो वाला टेस्ट लगा के बताइए। एंजाइटी 2 के लिए, एंजाइटी 1 तो हम लोगों ने चेक किया था दैट इट वाज नॉर्मल, राइट। नाउ यू हैव टू चेक फॉर एंजाइटी 2 वेदर इट इज नॉर्मल और नॉट। केस टेस्ट आपको बता दिया गया एक बार, वो भी नॉर्मल है। तो जिसने भी डेटा बनाया बड़ा सोच समझ के बनाया। यहाँ गए लेगेसी डायलॉग्स में गए, गो फॉर वन सैंपल केस टेस्ट। नाउ ये हम ले गए यहाँ पर नॉर्मेलिटी के लिए चेक कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म, पॉइसन, एक्सपोनेंशियल, बाकी सबके लिए कर सकते, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर डेटा कि आपका डेटा एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। सो ओके, the test distribution is coming out to be normal. Where is it? The value is 0.200. Clear? Data is normal. क्योंकि वो कैलकुलेटेड भी था तो वैसे तो होना ही। ये इसलिए आ सकता है क्योंकि हमने मैनिपुलेट किया था ना, एंजाइटी 2 को तो डिफर कर सकता है। अब अच्छी बात ये है नॉन पैरामेट्रिक में कि अगर नहीं भी आ रहा होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने हैं, है ना। लेकिन केएस टेस्ट का यूज यही होता है कि अगर आपका डेटा जो है उसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रायर, है ना, कि वो नॉर्मल है या पॉइसन है, एक्सपोनेंशियल है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक का ये फायदा होता है कि अगर नॉन पैरामेट्रिक का ये फायदा है कि अगर आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं है तो भी आप उन टेस्ट को लगा सकते हैं। ये अच्छी चीज होती है। तो अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबल है नॉन पैरामेट्रिक इस केस में,
ठीक है, मतलब आपने मेजर चेंजेस कुछ करे ही नहीं, है ना। तो वो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ रही है, वो अप्रॉक्स जा रही है ना, हम लोगों ने इतना नहीं चेंज किया होगा, हो सकता है। वो तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस देखेगा ना, इसीलिए, राइट। मीन देख लीजिए, मीन कितना आ रहा है एंजाइटी 2 का, इसीलिए सारे स्टैटिस्टिक्स देखना जरूरी है। मीन वैल्यू क्या आ रही है स्टेबल में, जो आपकी आ रही होगी, एवरेज बता रहा होगा ना, कितना है, हाँ, एंजाइटी 2 का, एंजाइटी 2 का चेक करना था, 1 का तो हमने पहले कर लिया था। हाँ जी, राइट, वो मेरे वाले से बहुत मैच कर रहा है, वो सिग्निफिकेंस वैल्यू भी डिफर नहीं करेगी। जस्ट स्टैटिस्टिकल जो स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं आपकी डिस्क्रिप्टिव, वो सिमिलर है, राइट। ओके, ये तो आपका था पहला टेस्ट। देन वी हैव अनदर टेस्ट, ऑफ कोर्स, माइक दे दो सर को। Some distributions are known to be non-normal. For Yes. example, giving examples when cars coming to petrol stations, etc. Yes. That is non-normal. That is poison. Yes. Then in quality-related issues, defects, non-defects, that is binomial. Yes. Yes. So when it is known that it is not normal distribution, then you will go directly towards non-parametric. You can check whether your sample is, हाँ, आप डायरेक्टली नॉन पैरामेट्रिक भी जा सकते हैं। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, आपका जो सैंपल डेटा है आपके पास में, इफ यू कैन चेक whether your sample is from Poisson distribution or not, right, तो आप उस केस में वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर उससे भी नहीं वेरीफाई, वो तो वेरीफाई कर सकते हैं, अगर वो पॉइसन से बिलोंग करता होगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से, इट विल फॉलो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अगर आपको मालूम है कि जो पॉपुलेशन है वो पॉइसन है उस केस में, तो मैंने जहाँ पे केएस टेस्ट लगाया था आपका, वहां पे आप पॉइसन के लिए चेक कर सकते थे। और जस्ट अ सेकेंड, सो जो पैरामेट्रिक हैं उनकी अजम्पशन है कि डेटा नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो किसी भी तरह से नॉन नॉर्मल है तो आप सीधे नॉन पैरामेट्रिक में जाइए, सेफ एंड साउंड। पैरामेट्रिक का पहला अजम्पशन होता है दैट द डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर वो आपको किसी तरह से लग रहा है, इसका लूप होल बस एक छोटा सा ही होता है कि अगर आपको लग रहा है कि वो नॉर्मल, आपका सैंपल नॉर्मल नहीं है, बट द फिनोमेना इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि एज वी increase our sample size, it will follow normal distribution, but you should have your sample size मतलब enough large to conclude that, right? मैं 24 के उसमें नहीं कर सकती हूँ। One technique will be of course to check the data normality, etc. या जो literature survey है, वो अगर बता दे कि कोई दूसरे studies में, for example, let me talk about something specific. Pollution, sustainability, climate change, etc. Yes. If there are other studies which are saying it is non-parametric, or yes, so we can straight away use that. Yes, you can. Thank you. Right away. What is the minimum sample size of this? These are all very small sample tests. Okay, so a 20 size would be enough in that case too. देखिए हम लोग कहते हैं the safer side is to increase your sample size, but as I realized that medical experiments जो हैं उनमें आप you cannot take bigger samples. So any sample मतलब at least it should be around 20. 20 में तो आप medical test भी कर सकते हैं, तो 20 to 50 तो होना चाहिए, right? Yeah. What is that asymptotic and non-Galois? मॉन्टे कार्लो जो है वो सिमुलेशन मेथड है, उसको इग्नोर कर दीजिए। असिम्प्टोटिक इज द वन दैट यू हैव टू। असिम्प्टोटिक का मतलब जो आपको सिंपल जो टू टेल टेस्ट बताया था, दैट इज असिम्प्टोटिक टू टेल टेस्ट, राइट। उस असिम्प्टोट का मतलब होता है दैट इट इज टचिंग योर एक्सिस एट इंफिनिटी, मतलब वो जाते जा रहा है, इसका मतलब बस ये। मॉन्टे कार्लो वो है, वो डिफॉल्ट मॉन्टे कार्लो दे रहा है, बट जब हम बूटस्ट्रैप करते हैं उसमें जाते हैं सिमुलेशन में, सो यू डोंट हैव टू लुक एट इट। That takes 99% significance. Monte Carlo. वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, सिग्निफिकेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज टेकिंग फ्रॉम मीन से प्लस माइनस कितना लेते हैं, ओके।
This gentleman's question. Yeah. If sample size is 30 or more, so as per Chebyshev theorem, what may be central limit? Yeah, it is. See, 30+ अगर हो जाता है तो आप अपने स्मॉल सैंपल टेस्ट जो है वो आराम से लगा सकते हैं, और 50+ हो जाता है तो लार्ज सैंपल भी लगा सकते हैं. ओके. और एक क्वेश्चन और, मतलब आई वाज लिसनिंग टू इट यस्टरडे कि सैंपल साइज डिटर्मिनेशन का थोड़ा सा आपका डाउट हो रहा था, बट व्हेन यू हैव एक्सप्लोरेटरी स्टडी और सब्जेक्टिव स्टडीज, you can take the sample size as per your convenience, right? That is justified. Yeah, that is what I'm saying कि उस केस में आप एक्सप्लोरेटरी ले सकते हैं, but in that case you can always go for non-parametric testing. No, that is very small. That will not be okay. You'll have to increase your sample size for sure. Okay. So first single sample आपने कर लिया. Let's go for 2 samples. तो सेम चीज आप 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए लगाएंगे. तो ओनली डिफरेंस इज जब आप यहाँ जाइए एनालाइज में, यू डोंट हैव टू गो फॉर पैरामेट्रिक टेस्ट, गो फॉर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, लेगेसी डायलॉग्स, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स. ओके, करिए जी. अब क्या आ रहा है? सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है. द ओनली थिंग इज यू आर अप्लाइंग इट इन द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. यू कैन चेक भले एंजाइटी 1 में दोनों ग्रुप में डिफरेंस है या नहीं है, और एंजाइटी 2 में है या नहीं, राइट? दैट इज अप टू यू. ग्रुपिंग वेरिएबल शुड बी spider in picture, right? Because they are independent. Okay. Now define group. One was 0, another one was 1. Right? Same करना है, कोई changes नहीं है. Okay. Continue. Now नीचे आपको 4 टेस्ट दिखा रहा है टेस्ट टाइप में. तो आई थिंक जो स्पीकर रहे हैं प्रीवियस सेशन में, डॉक्टर सिद्दीकी, उन्होंने बताया होगा कि मैन विटनी यू टेस्ट आपको एक्सप्लेन किया होगा. दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट दैट वी यूज. यू कैन डू दैट. आप चेंज करना हो चेंज करिए, लेकिन मैन विटनी यू टेस्ट एक्यूरेट होता है. दैट इज व्हाई वी यूज दैट. ओके, देन क्लिक ऑन ओके. यहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें हमें कुछ करना नहीं है. असिम्प्टोटिक सिग्निफिकेंस देगा आपको, मोंटे कार्लो चाहिए नहीं. ऑप्शंस है आपको. ऑप्शंस में आता है कि आप और कुछ और चीजें डिस्प्ले करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्टिव में वही है कि आपका एन क्या है, मीन क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है. दैट मीन्स द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन दैट इट विल शो. ओके, सो इफ you want it to be displayed, then you click on it. Otherwise it is completely fine, not related. Quartiles, तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए. डिफाइन करते हैं ग्रुप. ओके करिए, बताइए रिजल्ट्स क्या क्या है. सिर्फ मैन विटनी यू टेस्ट का देखिएगा प्लीज. टेस्ट स्टैटिस्टिक इज 46. asymptotic significance value is 0.130. You don't have to go for exact significance. और वो अगर उस पे रिजेक्ट हो रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे वाले पे भी रिजेक्ट ही हो रहा होगा. एक आपका आ रहा है ग्रुपिंग वेरिएबल, आपको बता दिया है नीचे देखिए. और उसके फुटनोट्स में बी में आ रहा है नॉट करेक्टेड फॉर टाइज. अगर टाई है तो टाई को कैसे ट्रीट करना है वो उसमें नहीं डिफाइंड है. दोनों ग्रुप्स में अगर टाई आ रहे हैं, टाई केसेस मतलब एंजाइटी लेवल बराबर आ रहा है, ये आपका नहीं प्रोवाइड करता है. तो टाइज को नहीं ट्रीट करेगा अगर आप चाह रहे हैं तो. ओके, सो क्या हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है. तो क्या हो जाएगा रिजल्ट हमारा? देयर इज नो डिफरेंस इन एंजाइटी. हाँ, ओके. हाँ,
ए और बी का मैंने बताया आपको। ए जो है वो ग्रुपिंग वेरिएबल है स्पाइडर और पिक्चर टेस्ट स्टैटिस्टिक। नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये नीचे जाइए, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन उसने दिया हुआ है। और बी जो है वो नॉट करेक्टेड फॉर टाइज, मतलब वो जो सिग्निफिकेंट वैल्यू दिखा रहा है उसमें उसने टाई केसेस को कंसिडर नहीं किया। ओके, shall we proceed? Clear? Any questions, queries? Now you have to do that for paired samples. तो हम लोगों ने पेयर्ड में क्या किया था टी टेस्ट में, किसको चेक किया था, एंजाइटी 1 एंड एंजाइटी 2 को फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन। सेम चीज करेंगे हम लोग यहाँ पे भी, बस आप क्या करेंगे, यू गो टू नॉन पैरामेट्रिक, टू रिलेटेड सैंपल्स। ओके, रिलेटेड का मतलब है पेयर, ठीक है। जाइए टू रिलेटेड सैंपल्स में क्लिक करिए, बिल्कुल देखिए एग्जैक्टली वैसी ही विंडो आई है जैसी उसमें आई, कोई चेंजेस नहीं है। तो जो एक चेंज था वो हमने देख लिया। अब अगर आपका पैरामीट्रिक है नॉन पैरामीट्रिक है तो जो दोनों के इन्फरेंसेस होंगे वो भी सेम होंगे, क्योंकि हमें मालूम है डेटा तो नॉर्मल ही है, तो पैरामीट्रिक लगाओ नॉन पैरामीट्रिक लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी गो फॉर पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके राइट, तो करिए इसको चेक। नॉन पैरामीट्रिक में देखिए वैल्यूज नहीं मांग रहा है आपसे किसी भी तरह, है ना। अब आपको कौन सा टेस्ट बताया है थ्योरी में, विल्कॉक्सन और कुछ भी बताया है क्या? तो हम लोग विल्कॉक्सन ही कर लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टेस्ट, साइन टेस्ट के अलग। जब भी आप कोई भी टेस्ट लगाते हैं तो मेक श्योर दैट योर डेटा follows the assumptions made by that particular test. विल्कॉक्सन की भी कुछ होंगी, साइन की भी होंगी, मैकनेमार की भी होंगी। मैकनेमार हमारा 2x2 में ही काम करता है, मतलब बाइनरी वेरिएबल होगा तभी वैल्यू देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें और उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है, तो जस्ट गो फॉर विल्कॉक्सन। मैं इन टैब्स में सिर्फ इसलिए नहीं जा रही हूँ बिकॉज मैंने बता दिया एग्जैक्ट वैल्यूज और ऑप्शंस में क्या क्या दिखता है, उसमें हमें चाहिए नहीं वो descriptives and quartiles display, right? ओके करिए। ओके, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट बता रहा है आपको, ये देख लीजिए नेगेटिव रैंक, नेगेटिव कैसे दे रहा है वो, इफ एंजाइटी 2 इज लेस देन एंजाइटी 1 देन इट विल बी। तो ये तो आपका कितना 24 ऑब्जर्वेशन है, आप देख सकते हो आराम से कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही होगी। डेटा ऑब्जर्व करिए, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आउटपुट देखिए, नेगेटिव रैंक्स आ रही हैं 22, यानी कि जिसमें एंजाइटी 2 इज लेस देन एंजाइटी 1। मेरे 22 केसेस आ रहे हैं, आपके चेंज आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे आएगा बिकॉज वी मैनिपुलेटेड इट सेपरेटली, ठीक। तो देखिए मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे एंजाइटी डिक्रीज हो रही है। जो फिर पॉजिटिव रैंक्स वो लेता है बिकॉज उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक इज बेस्ड ऑन रैंकिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। विल्कॉक्सन साइन रैंक का आप रैंक असाइन करते हैं हर एक को, ठीक। नाउ इन दैट केस जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक आ रहा है उसका जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रहा है व्हिच दैट इज लेस देन 0.001, मतलब बहुत छोटा है। तो 0.05 से तो डेफिनेटली छोटा है, सिग्निफिकेंटली छोटा है, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग लेस देन 0.001। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। And what would be the null hypothesis in this case? There is no difference in the anxiety levels. It is rejected. यानी कि स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो आपका एंजाइटी लेवल में डिफरेंसेस आ रहे हैं, यही चीज उसमें आ रही थी, ये आ रही है, क्योंकि बात है तो पैरामेट्रिक लगाएंगे नॉन पैरामेट्रिक लगाएंगे, रिजल्ट तो सिमिलर आने चाहिए। किसी और ने डेटा जब ज्यादा चेंज किया था तो कुछ चेंज आ रहा है, किसी का एक्सेप्ट भी हो रहा है,
डेटा चेंज किया था ना, किसी का एक्सेप्ट हो रहा है क्या नल हाइपोथेसिस? पॉइंट 29 ना, तो एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, एक के एक्सेप्ट भी हो रहा है हमारे पास। दैट डिपेंड्स कि डेटा किस तरह से चेंज हो रहा है। 0 इज लेस देन 0.5 नो, लाइक रिजेक्ट हो रहा है ना, 0.01 आ रहा है ना, रिजेक्ट हो रहा है। हाँ जी, एक्सेप्ट हो रहा है। सबका अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये है सबने अलग अलग वेरिएशंस किए हैं। आप सेम पे डेटा पे करेंगे तो सेम आएंगे रिजल्ट्स। ओके, क्लियर है ये सबको? ठीक है, सो दैट कंक्लूड्स योर पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एनी क्वेश्चन और क्वेरी इज मोस्ट वेलकम। प्लीज डू आस्क क्वेश्चन। ये आप एक काम करिएगा कि जो सर ने आपको केस स्टडी दिया है, ट्राई टू अप्लाई दिस टेस्ट। आपको प्रोसीजर पता चल गया है, पाथ पता चल गया है, वो उसके ऊपर अप्लाई करिएगा। बिकॉज टेस्टिंग इज समथिंग जो सबके बहुत ज्यादा काम में आती है, सबको लगाना पड़ता है ना। टेस्टिंग है, और अभी आप लास्ट सेशन में मतलब नेक्स्ट सेशन में कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ेंगे थोड़ा सा, एंड देन उसके बाद में आप अनोवा पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो है वो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, तो प्लीज डू दैट केयरफुल। ओके, क्वेश्चन पूछिए प्लीज कुछ। हमें एक प्रोफेसर मिले थे रिसेंटली, और वो बिल्कुल सर पे जाके खड़े हो जाते थे और बोलते थे क्वेश्चन पूछो, और अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो बोलते मतलब मैंने पढ़ाया नहीं है। क्वेश्चन पूछिए। यस प्लीज। सॉरी, There's a one Ferroni's collection. Can we Okay. do that in these cases? I honestly I don't know. This is my exploring, but I look into it and tell you if that is okay. Okay, sure. नहीं, आप जब अनोवा लगाएंगे ना, तो जब वन वे अनोवा लगाएंगे तो वो पाथ वही होगा बिल्कुल। ठीक है, तो क्योंकि वो एफ टेस्ट ले रहा था ना, तो वो वेरिएंस भी लेके चलता है। दैट इज राइट। जब आपका एक ट्रीटमेंट हो और वो 2 ग्रुप्स पे अप्लाई हो रहा हो, है ना, तो इसमें हमारा ट्रीटमेंट क्या था, मेडिसिन 2 ग्रुप पे अप्लाई हो रही थी, तो इस केस में वो लग सकता है। ट्रीटमेंट आपका मेडिसिन 2 ग्रुप्स पे लग रहा है, या 2 एंजाइटी लेवल देखे जा रहे हैं। बट अगेन वो जब आप लास्ट सेशन करेंगे उसके साथ में प्रैक्टिस कराएंगे हम। हाँ, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, यस यस, वो सब आपका अनोवा में आएगा। यू विल हैव टू वेट फॉर द लास्ट सेशन, राइट, बिकॉज ये केसेस आते ही हैं ऑब्वियसली। आप कैंसर के मान लीजिए, कैंसर में तो बहुत नॉर्मल स्टडी है कि आपके स्टेज 1 से स्टेज 2 में जा रहे हैं, स्टेज 2 से 3 में जा रहे हैं, 3 से 4 में जा रहे हैं, ऑल आर पेयर्ड, मल्टीपल ग्रुप्स हो गए, तो वहां पे के इंडिपेंडेंट सैंपल्स या के पेयर्ड सैंपल्स टेस्ट लगेंगे, राइट। पेयर्ड ही लगेगा, इंडिपेंडेंट नहीं लगेगा, पेयर्ड टेस्ट लगेगा, के पेयर्ड सैंपल्स। नॉन पैरामेट्रिक है तो उसमें भी के पेयर्ड सैंपल्स का अलग से टेस्ट है, वो लगेगा। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो पढ़ते हैं। यस, माइक हैंड ओवर करो प्लीज, इधर आगे। मैम जब हम लोग इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट अप्लाई किया है, तो इसमें डेविएशन डिफरेंट आ है बिल्कुल स्पाइडर की एंड पिक्चर्स की। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने इक्वल वेरिएंस एज्यूम किया होगा, हमने एज्यूम क्यों किया हुआ है वो कि उसका डेविएशन डिफरेंट है। वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, वो टेस्ट चेक करेगा। आपका डिफरेंस तो आपको दिख रहा है, जैसे हम लोग मीन की टेस्टिंग भी कर रहे थे, तो जब हमारे वैल्यू एग्जैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 43 आ रही थी, लेकिन जब हम टेस्ट लगा रहे थे तो वैल्यू जो है वो 39 के आसपास अगर आ रही थी, तो वो स्टैटिस्टिकली जो डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो उसमें वो चेक करता है। ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। वेरिएंस एक में क्या आ रही थी, 0.98 नहीं 0.7 नहीं आ रही, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट 9.93 एंड and the next one 11. ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
है ना, तो वो चेक करेगा कि वो स्टैटिस्टिकली ज्यादा है या नहीं, राइट। और वो टेस्ट आपका अप्रूव हो रहा है, दैट मींस के इक्वल वेरिएंसेस हैं, यानी कि जो वो वेरिएशन दिख रहा है दैट इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ओके, दैट इन दैट केस यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज हाउ विल यू नो कि जो हमारी वेरिएंस आ रही है, मान लिया बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत कम आ रही है, वो जस्टिफाइड है या नहीं, है ना, तो उसके लिए वो पहले वेरिएंस चेक करेगा। ओके, null hypothesis होगा that the observations are independent, right? तो आप जब टेस्ट करेंगे, अगर वो रिजेक्ट हो रहा है, that means the observations are not independent. If not independent, then correlated. And also the value of the correlation is showing कि वो 0.8 आ रही है अगर, that means they are highly positively correlated. Okay? नहीं, रिजेक्ट होगी दैट मींस द वैल्यूज आर, हाँ, जब रिजेक्ट होगी तब वो होगी हाईली पॉजिटिव, मतलब हाईली कोरिलेटेड। ठीक, यस, वेयर, yeah, Ma'am, if I'm having a sample size of around 75 to 100, हाँ, I can apply t-test. वही मैंने कहा कि वो बड़ा हो जाएगा तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बट आई थिंक 75 में लगा सकते, राइट सर, लगा सकते हैं ना 75 में टी-टेस्ट। Z स्कोर आप Z पे जाएं तो आई थिंक ज्यादा बेटर है। Yeah, the accuracy. We have no limit. Which one is large and which one is small? When the computers were not available, then a rule of thumb was given that sample size is said to be small if it is smaller than 30, and is said to be large when it is greater than 30. But now computations are too much easy, so we cannot define which data set is small and which data set is large. Okay, so you can apply